Okay. Thank you so much, ma'am. Yes, myself, Dr. Snehal Bhagwat. Good afternoon, everyone. All students, are you all there? Yes, ma'am. Okay. Yes, let's start. First, I would like to introduce about our college as our guest, Dr. Nita Sali is here, and some of the parents are also here with our webinar. So first, I would like to introduce ourselves about our college, Matushri Kashipin Motilal Patel, Senior College of Commerce and Science. So about our college, it is again located at 2-minute distance from Stakuli station and 8 to 10 minutes rickshaw distance from the Dombivli station. Close proximity to the station has conveyed students from Kurla to Shahpur to study here. The institution is obtained permission in the year 2008 as a degree college and it is affiliated to university. The college emphasizes on high values, professionalism, social sensitivity and dynamic global proficiency and philosophy without diminishing the importance of national interest. Also, the college is imparting all the higher education to the younger generation with innovative academic programs. Greater emphasis on their on given the specializations through various certified courses on the specialization courses which we have throughout the various courses. Various certified courses we have equivalent to this latest curriculum programs we have within our syllabus. Overall development of our college student is encouraging them for the development of our students. Co-curricular activities are there for nurturing their future values. Also, college sensitizes the students being conscious as their role to constructive and responsible part of the large society through the various extension activities. Overall, college leaves no area untouched where the progress of the students are concerned, and the college renders various courses like BCom, BMS, BBA. You all know that, you all know about that. Apart from that, now this is about our college. Now I'd like to welcome our guest, Dr. Nita Sali, who is a resource person of our today's webinar. She is a homeopathic practitioner and nutritionist and the counselor from last to 10 to 15 years. She is working as a counselor as well as homeopathic practitioner. So lots of members of the society are getting the benefit from her counseling and getting the guidance from her. So I welcome our guest, Dr. Nita Sali. And one more thing I would like to tell you about our WDC. About our WDC cell. So I would like to request, yes, thank you so much, Mike ma'am. So regarding the WDC, what is the WDC cell? Women Development Cell it is. It is again working under our college committees, one of the committee of the college, WDC cell. So Women Development Cell's chairperson is our Vice Principal ma'am, respected Vice Principal ma'am Madhuri Nandanwar. The members are Mehak Motwani, Yuti Nandu and Madhulika Singh ma'am. They are the members of the WDC. The Women's Safety in charge is the Mehak Motwani ma'am, who is again co-in charging our event. She is the member. So I would like to request all the girls of our college who are attending here, who is not attending even. So make sure if you have any safety issues, any safety problems regarding you, then you can contact the Mehak ma'am. The number you all have the number of Mehak ma'am. If you're not getting, then please tell us. We'll let you know in the official group. WDC counselor is our another coordinator, Kalpana Jadhav ma'am, coordinator of BCom department. She is a WDC counselor. If you want any help from the WDC counselor, or if you have any query, if you want any solution for any of the problem, as a women's safety in charge is there. Okay, so this is about the WDC cell which is working under our college committees. Yes, now I would like to hand over to our today's guest. Over to you, ma'am.
And again, I would like to welcome you as well on behalf of our college. Yes, over to you, ma'am. Yeah, thank you, Snehal ma'am. Thank you for the welcome and for the kind gesture. And I'm very happy to listen all this and your organization and this activity about women development cell. And this is the need of today's time. So it's really very good thing to see. Am I audible and visible? Hello. You are audible. Yes, You yes, are ma'am. audible. Yeah. So I think we need to share my screen or that PPT so that I can start. Yes, ma'am. I'm sharing on behalf of you. Is it Yeah. okay, ma'am? Yeah, absolutely. Thank you. Okay, thank you. Before starting, शुरू करने से पहले मैं एक बात अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ, which is said by Swami Vivekanand about women. So he said that there is no change for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. अगर हम इसको देखते हैं, हेलो, Yes, yes, ma'am. We are listening, ma'am. या थैंक यू. सो अगर हम इस बात को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो इट मीन्स कि सोसाइटी या समाज का मूलभूत विकास एक स्त्री और पुरुष दोनों के भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. अगर एक पंछी एक पंख पे कभी उड़ नहीं सकता, तो इन द सेम वे जैसे एक मेल या फिर जो एक आदमी होता है उसकी जितनी उन्नति जरूरी है उतनी ही एक स्त्री की भी उन्नति जरूरी है. तो इस तरह से देखा जाए तो आज समाज में जब हम देखते हैं तो सभी जो लोग हैं या फिर जो भी लड़कियां हैं, वुमेन है, दे आर रियली डेवलपिंग और कंधे से कंधे मिलाकर आगे भी बढ़ रही है. तो बट इन सब चीजों में एक चीज अगर हम नोटिस करते हैं तो थोड़ी सी पीछे रह जाती है. अगर हम अपने घर के महिलाएं को देखती है या फिर जो हाउसवाइफ रहती है, जो एक घर की लेडी रहती है, जो मुख्य घर चलाती है, अपनी माँ या बहन जो भी रहती है, वो घर चलाते वक्त पूरा घर का ध्यान रखती है, सबका उसके प्रायोरिटी लिस्ट में उसके बच्चे रहते हैं, उसका हस्बैंड रहता है, एवरीवन इज देयर. बट वो खुद को जो उसकी जो ये देती है वो सबसे एंड में देती है, वो खुद की प्रायोरिटी सबसे एंड में देती है. तो उसकी वजह से हम नोटिस करते हैं कि बिकॉज ऑफ विच कभी कभी वो हेल्थ में पीछे रह जाती है या फिर वो ये बात उसको ध्यान में नहीं आती है कि उसकी हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है. और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो या वुमेन आर मोर प्रोन टू सम डिसीजेस कंसिडरिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. सो हाइजीन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. So today we are going to speak on this women's health and hygiene, and I would like to throw some light from my side. मेरी तरफ से मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी. अगर कुछ भी सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप मुझे एंड में पूछ सकते हैं. मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. तो आई वुड फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज हेल्थ. क्या मैं यहाँ पे सबको पूछ सकती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जिनको भी लगता है कि आपके हिसाब से आप हेल्थ क्या कहना चाहेंगे, किस 2 या 3 वाक्य में अगर मैं आपको पूछूंगी कि आप हेल्थ किसे कहना चाहते हैं या किस तरह से आप हेल्थ को डिफाइन करते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से. हेलो, कैन एनीवन वुड लाइक टू टेल समथिंग और शुड आई प्रोसीड? So okay, let me tell. अगर हम हु की डेफिनेशन देखते हैं तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. लेकिन अगर हम अपने एक जनरल स्टेटमेंट जब हम करते हैं तो अगर हम हेल्दी किसको बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि हमें कुछ बीमारी नहीं है या फिर हमें कुछ सर्दी जुकाम खांसी कुछ नहीं हो रहा है, तो देन वी आर कॉल्ड आवरसेल्फ एज हेल्दी.
बट अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली फिजिकल हेल्थ। हम फिजिकली तो हेल्दी रहना जरूरी है, बट उसके साथ हम मेंटली, सोशली, मतलब जब हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, हम किस तरह से चीजों को बैलेंस करते हैं, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है, उसके ऊपर अपनी हेल्थ डिपेंड करती है। और फिर हम कोप अप कैसे करते हैं सोशल लेवल पे, जब हमें कोई गिल्ट देता है या फिर कोई भी चीज अपने साथ जब घटती है, तब हम उस चीज को डील किस तरह से करते हैं, उसके हम ऊपर हमारी हेल्थ डिफाइन होती है। सो बेसिकली हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, health is physical, mental, social, emotional, psychological. By all aspects it is defined. It is not merely the absence of disease. So this is called as health. लेकिन अगर हम वुमेन्स हेल्थ की, अभी हम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम वुमेन्स हेल्थ की बात करते हैं तो देयर आर मच मोर पॉइंट्स which we should consider. Can you show next slide please ma'am? हेलो या अगर हम वुमेन्स हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं जिसके बारे में हमें सोचने की और जिसके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत है। जैसे कि गायनेकोलॉजी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, बर्थ कंट्रोल है, जो भी डिलीवरी रहती है या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, कैंसर्स है, जो वुमेन्स में कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, अदर फीमेल कैंसर। So these are some issues like related to menopause. Can हाँ, मेनोपॉज और मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो अपने बोन्स रहते हैं वो धीरे धीरे उसका डिटोरिएशन होता रहता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट वी नीड टू थिंक, व्हाट वी नीड टू केयर, ऑल दिस थिंग्स, सेक्सुअल हेल्थ एज वेल एज हार्ट डिजीज, ऑल दिस, ये सारी बातें अपने अगर हम देखते हैं तो एक वुमन के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो लेकिन ये बात अगर हम देखते हैं तो कोई भी ये सोचता है कि व्हाई इट इज, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट, अगर हमारे बॉडी में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जिसकी हम केयर लेना चाहते हैं, या फिर जो हमें मालूम तो होना चाहिए। कोई भी चीज का डिटोरिएशन मालूम होने के पहले हेल्थ क्या होती है ये भी जानना जरूरी है, पहले अपनी बॉडी क्या होती है। तो हम ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में फीमेल बॉडी के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखते हैं तो यहाँ पे जो पार्ट्स है, एक रहता है यूटेरस, दूसरा रहता है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना और हार्मोन्स। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है। और इसके जो फंक्शंस है, तो एक इस जो भी फंक्शंस है, जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें जो मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस एग्स, सो दैट जो भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टिलाइज होने के बाद एक अच्छी सी कंडीशन और एक स्पेस प्रोवाइड करना यूटेरस में, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो भी फीटस या एम्ब्रियो रहता है उसको उसकी ग्रोथ होना अच्छे से, और टू अलाउ स्पर्म फ्रॉम अ मैन टू मीट द ओवा. So this is the main function of our reproductive system. Like the main function of the female reproductive system is to produce eggs and to be fertilized and to provide the space and condition to allow a baby to develop. And in order to this happen, the female reproductive system has the structure necessary to allow sperm for a man to meet the ova. तो ये सबसे मेन फंक्शन रहता है, लेकिन इसको छोड़ के भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ और फंक्शंस रहते हैं। जो भी हार्मोन्स रहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन रहता है, जो ब्लड रहता है बॉडी में उसको वो क्लॉट होने से रोकता है, तो बिकॉज ऑफ विच हार्ट अटैक और हार्ट की कंडीशन अच्छी रहती है। तो दिस इज अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन विच प्रोड्यूस विच मतलब ये एक फीमेल के लिए शील्ड का काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि जो कैल्शियम है बॉडी में, उसका रिस्टोरेशन ये अच्छे से कर लेता है।
और उसकी वजह से जो बोन्स है वो उतने डिटोरिएट नहीं होते हैं। तो जब तक जैसे हम बोलते हैं कि मेंसेस चल रहे हैं कोई भी फीमेल्स के, तो तब तक उनकी हेल्थ इश्यूज कम रहते हैं, जैसे घुटनों में दर्द हो या फिर कोई भी तकलीफ। लेकिन जब वो मेनोपॉज में पहुंच जाती है तो या फिर जब उनके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे औरतों को जो हमारे मम्मी की एज की है या फिर जो हमारे दादी की एज की है, तो उनको हम घुटनों में दर्द देखते हैं या फिर कोई और तकलीफ भी देखते हैं। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके जो हार्मोन्स है वो हमें एक शील्ड देने का काम करते हैं। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि एक ट्रेंड सा आ चुका है आजकल कि जब हम अगर यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे डॉक्टर्स कभी कभी रिकमेंड करते हैं, समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव यूटेरस, और उस वक्त अगर वो सर्जरी करते हैं वो रिमूव कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ रिमोट प्लेसेस में कई औरतें जो 35 या 40 ईयर्स की होती है, तो वो उनको बोल देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये रिमूव कर दीजिए तो आपको मेंसेस भी स्टॉप हो जाएंगे एंड यू आर फ्री फ्रॉम दिस पेन आल्सो। बट इट्स नॉट लाइक दिस। अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए ये जो सिस्टम है अपनी, वो बॉडी में एक शील्ड का काम करती है। तो बिकॉज ऑफ दिस जब भी हम किसी को कोई भी सलाह देते हैं, अगर कुछ कंप्लेंट्स कम रहती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट, और हमें सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए ऐसे वक्त, या फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये जो फंक्शंस है इसके ऊपर फीमेल की हेल्थ और मतलब ओवरऑल हेल्थ भी डिपेंड करती है। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम ये फंक्शनिंग कैसे होता है ये जानना चाहते हैं, तो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का ही पार्ट है, जो हमारे ऑक्सीपिटल एरिया में रहता है, तो हाइपोथैलेमस जो रहता है वो GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी एक ग्रंथि है, तो ये बहुत सारे दूसरे भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ ये LH and FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। तो ये हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, और ओवरी का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल बनने वाले होते हैं, तो ये फॉलिकल उससे रिलीज करवाते हैं। तो बहुत सारे फॉलिकल्स तैयार होते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, और जैसे उसमें से एक दो मैच्योर होके आगे जाके वो इन केस अगर वो फर्टिलाइज होते हैं, तो देन देयर इज द फीटस और एम्ब्रियो इज प्रिपेयर्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन? जैसे मैंने ये बोला कि आपको कि ये ब्लड कोएगुलेट नहीं होने देता है या फिर कैल्शियम रिस्टोर करता है। उसी के साथ जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है, तो ये जो यूटेरस रहता है, यूटेरस का जो अंदर का इनर लेयर रहता है, वहां पे एंडोमेट्रियोसिस रहता है, मतलब वहां पे एक बॉडी प्रिपरेशन करती है फॉर द एम्ब्रियो। एवरी साइकिल बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द एम्ब्रियो। तो वो जो प्रिपरेशन रहता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। तो आफ्टर 14 डेज प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट्स, और ईस्ट्रोजन थोड़ा उसके बाद में कम होता है, और प्रोजेस्टेरोन फिर 14 से 28 दिन तक कंटिन्यू रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हुआ, तो देन इट टर्न्स एंड ये सारे लेवल लो होके फिर बाद में एक लेडी को पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इट्स अ नॉर्मल साइकिल फॉर अ फीमेल। तो ये सब होने के लिए इसमें एक और बात बहुत जरूरी होती है, वो रहता है कि हमारे हर कोई हार्मोन्स हमारे मूड्स एंड स्विंग्स और बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसमें भी जो कम ज्यादा मात्रा होती है ये भी हमारे मूड्स एंड स्विंग्स को ये करती है। जैसे कि जब पीरियड्स आने के पहले बहुत सारी लेडीज चिड़चिड़ापन करती है, बहुत उनको गुस्सा आता है, कम ज्यादा ये होता है, इरिटेट होती है, पल भर में खुश होती है, पल भर में। तो ये सारी बैलेंस करने के लिए खुद को अपनी सिस्टम भी मालूम होना चाहिए कि हाँ, मुझ में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो सो आई शुड टेक केयर। तो मेरा थोड़ा सा मैंने ध्यान देना चाहिए, या फिर घर वालों ने भी उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी चिड़चिड़ भी हो सकती है। सो वी शुड बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So let us see common diseases about women.
जो हम देखते हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जैसे मैंने अभी बोला, यूटेरस जो रहता है उसका जो इनर लेयर रहता है, तो वो इनर लेयर के वहां पे एक गादी जैसा बॉडी अपना एक तैयार करती है टू डेवलप द एम्ब्रियो। इट्स लाइक द डेवलपिंग कंडीशंस फॉर बेटर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अगर कभी कभी इसको इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाती है तो इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स मतलब जैसे कुछ गांठ अंदर के साइड में, बॉडी के अंदर के साइड में तैयार होना, तो उसके यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। कैंसर्स तो बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन जो फीमेल्स में कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, HIV एड्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस मतलब जो ब्लैडर रहता है उसको सूजन आके फिर पेनफुल जो भी यूरिनेशन पास करते वक्त पेन होना, और एवरीथिंग इज लाइक पेनफुल फॉर दैट वुमन, सो इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब इसके अंदर ओवरी के अंदर एक गांठ जो बोलते हैं हम, वो गांठ फॉर्म हो जाती है काफी सारी चीजों की वजह से। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सो दीज आर सम कॉमन डिसीजेस। ये कुछ कॉमन कंडीशंस है जो बहुत सारे फीमेल्स में पाई जाती है कम ज्यादा मात्रा में। किसी किसी को आफ्टर 40, 30 या 35 ऐसे उम्र में पाई जाती है, किसी किसी को हम देखते हैं कि यंग एज में भी होता है। और कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि फूड हाइजीन, हेल्थ, फूड हाइजीन, एक्सरसाइज, दीज आर द थिंग्स विच वी कैन मतलब हम इसके ऊपर अपना थोड़ा सा ध्यान देके कंट्रोल ला सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जिसका कारण हम बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक अच्छी हेल्थ के लिए कुछ प्रिवेंशन और कुछ कुछ केयर तो हम डेफिनेटली ले ही सकते हैं, जो मैंने आगे के स्लाइड में बोले हैं। सो व्हाट आर द केयर एंड प्रिवेंशन? अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे महिलाएं आज प्रोफेशनल लेवल पे काम करती है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाती है, तो स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये जो आदतें हैं ये काफी सारी जगह पे पाई जाती है। कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आदमियों की ही है, औरतों को नहीं है। सो क्विट स्मोकिंग इज इम्पोर्टेंट। कई सारे ऐसी चीजें हैं कि जो स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड गो फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग, लाइक जब हम साल में कम से कम एक बार, अगर आफ्टर मैरिज तो साल में कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और कुछ रेगुलर टेस्ट रहते हैं, पैप स्मीयर, और कुछ ब्लड टेस्ट भी रहते हैं, या फिर और भी कुछ टेस्ट रहते हैं, मैमोग्राफी वगैरह, जो अगर जरूरत पड़ने पे गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। तो इस तरह से खुद का एग्जामिनेशन और खुद की केयर लेने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो रेगुलर स्क्रीनिंग भी रहती है, जो साल में कम से कम एक बार करना चाहिए। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, कुछ चीजें हैं जो सेक्स के वक्त भी फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आफ्टर सेक्स वन शुड क्लियर द इनर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसको भी क्लीन रखना चाहिए, वाइप करना चाहिए, और यूरिनेशन पास करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बेसिकली ये तो हमारे आहार से रिलेटेड होता है कि हमें हमारे आहार में अगर हम बहुत अच्छे से न्यूट्रिशियस हेल्थ डाइट लेते हैं तो ये सारी चीजें आ ही जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं तो बनाना है, एप्रिकॉट है, बहुत सारे फ्रूट्स है, पपैया है, स्पिनच है, तो इन सब में ये दीज आर माइनर सॉल्ट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो हम सुनते हैं ये बहुत छोटे या कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी जरूरत रहती है। लेकिन इसकी जरूरत रहती है तो हम जब हमारा खाना जो है या फिर हमारा फूड जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से मिलने चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आहार है, हमारा जो डाइट है वो पूरा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स हो। सैलड, प्रोटीन्स के लिए हम सैलड ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और फैटी एसिड्स या जो भी ओमेगा 3 के रिलेटेड जो भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हो। ये सारी चीजें हमें अलग अलग फूड से मिलते हैं। अलग अलग कुछ फ्रूट्स है तो जो भी सीजनल रहते हैं जैसे फ्रूट्स, वो जब हम खाते हैं तो हमें किसी से न किसी से कुछ ना कुछ कम ज्यादा मात्रा में मिलता रहता है। जैसे मैंने अभी बोला कि मैग्नीशियम एंड
पोटेशियम या और कैल्शियम, ये जो है जैसे ये पपाया में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, पीनट में पाया जाता है, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो अगर हम ये सारा जो भी अपना एक रेगुलर डाइट का जो पूरा ये है, तो इसमें अगर हम लेते हैं सकस आहार जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जरूरत हमें हमारे शरीर को जो रहती है वो पूरी हो जाती है, और ओवरऑल इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, और हमें वो हेल्थ रिगेन करने के लिए या फिर किसी तरह का बीमारी ना लगने के लिए ये हमें अच्छा फायदा देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So now let us talk about hygiene. जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जैसे जो यूरेथ्रल पार्ट रहता है वो फीमेल्स में छोटा रहता है एज कम्पेयर टू मेन, सो दे आर मोर प्रोन टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और भी बहुत सारे जैसे इन्फेक्शियस कंडीशंस होते हैं जो फीमेल्स में कॉमन रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे लिए हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो जैसे बहुत सारे डिसीजेस हम अपने आप ही उससे मतलब सेफ हो जाते हैं। जैसे एक है मेक वजाइनल वॉश, जो भी अपना एक रेगुलर रूटीन है, उसमें जो इनर पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स है, उसको क्लीन करना विथ वाटर एंड सब माइल्ड सोप। जैसे बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस वाला या बहुत स्ट्रांग वाला फ्रेगनेंस का कुछ भी चीज इनर बॉडी पार्ट्स के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जो भी सोप माइल्ड फ्रेगनेंस का रहता है तो उसके साथ आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर रेगुलर वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर एवरी यूरिनेशन, जब भी हम वॉशरूम यूज करते हैं तो एक नॉर्मल पानी से धोने की आदत रहनी चाहिए बॉडी का पार्ट्स को। और जो वजाना रहता है उसको इट शुड बी क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, सो दैट इन्फेक्शन कुछ स्प्रेड ना हो। और इट्स अ गुड एंड सेफ प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो डोंट यूज सोप बहुत ज्यादा सोप, क्योंकि उसमें भी फिर केमिकल रहते हैं और ये सारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, तो उसकी कभी कभी एलर्जीज और रिएक्शंस आ जाती है, फिर उसके लिए अलग आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप। एंड जैसे कभी कभी स्क्रब या इची अगर बहुत कुछ होता है, अगर वहां पे इचीनेस लगता है, तो अगर स्क्रबिंग होता है तो इट अगेन क्रिएट्स इरिटेशन और फिर वहां पे जलन भी स्टार्ट होती है। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड to scrub your intimate area. Instead of that, you can use some like oil in that case. And like I already told, clean from front to back. Use a wash with natural ingredients. मतलब कुछ mild इसमें ये रहता है। तब कई जगह पे ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे क्रीम्स लोशंस मार्केट में मिलते हैं और बहुत सारे लड़कियां या औरतें उनको देख के इंटीमेट होती है, वो हम यूज करने की कोशिश करते हैं। बट देन इट again check first that what you are using with your concerned person, whether it is safe or not safe to you. And wear comfortable garments. Inner wear should be comfortable and it should be of cotton. तो जिसकी वजह से कॉटन थोड़ा सा एरी रहता है और वो जो एरिया रहता है वो ड्राई रहना बहुत जरूरी होता है। अगर मॉइस्ट रहता है तो इन दैट केस फिर वो अगेन इन्फेक्शन के, फंगस डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से वो पार्ट ड्राई एंड क्लीन रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जब भी जो भी इनर्स है वो भी ड्राई, इट शुड बी आल्सो ड्राई। और कभी कभी वो भी अच्छे धूप में अगर सूखते हैं तो दैट इज मोर गुड। और इसको छोड़ के एक और बात है जो वुमेन के हाइजीन में इम्पोर्टेंट रहती है, वो रहती है पीरियड्स। जब वुमेन्स की पीरियड रहती है तब उनको स्पेशल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे जो भी सैनिटरी पैड्स रहते हैं उसको एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ चेंजिंग, जब हम वो सैनिटरी पैड चेंज करते हैं तब आप उसके होने के बाद आपको हैंड वॉश क्लीन अच्छे से करना चाहिए। इट शुड नॉट मतलब क्रिएट अगेन सम न्यू प्रॉब्लम फॉर योर हेल्थ। सो और वाटर का यूज या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स क्लीन रखना, उसको हो सके उतना ड्राई रखना, टाइम पे
सैनिटरी पैड्स चेंज करना, ये कुछ चीजें हैं जो एट द टाइम ऑफ पीरियड्स अगर हम हाइजीन ये रखते हैं तो फिर द फीमेल फील्स कंफर्टेबल एज वेल एज इट, मतलब ये कुछ आगे जाके और नए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती है। जैसे मैरिड वुमन के लिए भी जैसे मैंने थोड़ी टाइम पहले बताया कि हाइजीन इम्पोर्टेंट है, तो होता है आफ्टर एंड बिफोर सेक्स, जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको क्लीन करना और ड्राई रखना, ये जो चीजें हैं इससे उसकी हाइजीन मेंटेन रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम देखते हैं तो हाइजीन के साथ साथ और कुछ चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होती है, जो ओवरऑल अपने को हेल्थ को एक अच्छा फायदा देती है। तो सबसे पहले आता है उसमें डाइट। तो डाइट, ईटिंग न्यूट्रिशियस डाइट फूड्स कीप्स अस हेल्दी। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, प्रोटीन्स आ गया, विटामिन्स आ गया, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गया, मिनरल्स आ गया, सॉल्ट्स आ गया, ये सारा अपने बॉडी की जरूरत रहती है जो अलग अलग फूड कंटेंट में रहता है। दालें है या फिर नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो वेजिटेरियन लोग है उनके लिए पनीर रहता है, और या फिर कैल्शियम के लिए भी हम लोग देखते हैं दूध है, दही है, पनीर है, टोफू है। ये इस तरह से जब हम एक बैलेंस मील लेते हैं, बैलेंस फूड जो हम बोलते हैं वो खाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन जरूरी है बॉडी के लिए, जो जो पोषक तत्व बॉडी के लिए जरूरी है, वो जब बॉडी को मिलते हैं तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ हेल्दी बॉडी, एंड हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। सो अल्टीमेटली ये अपने लिए ज्यादा फायदा देता है और हेल्थ अच्छी रहने के लिए डेफिनेटली ये फायदा करता है। जब हम देखते हैं कि वुमेन में एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत, तो वो टाल देती है कि देखते हैं कुछ दिन के बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, या फिर देखते हैं घर पे ही सॉल्व होता है क्या, या इसी उसको पूछते हैं, फ्रेंड्स को पूछते हैं। तो शी ट्राइज टू अवॉइड द थिंग्स। उसको लगता है कहाँ डॉक्टर के पास जाऊं, कहाँ बताऊं, कैसे बताऊं, ये वो। तो आज भी इतना एजुकेशन होने के बाद भी और इतना सारी जगह पे डेवलपमेंट होने के बाद भी वुमन अपने हेल्थ की लेके वो इतना भी सीरियस नहीं रहती है कि वो टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करे। बिकॉज ऑफ विच कभी कभी हम देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कहीं जगह बॉडी में फिर अगर आप टाइम पे अगर नहीं देते हो बॉडी को ध्यान, तो चीजें बढ़ जाती है और फिर अपने को अननेसेसरी वी क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन विच इज नॉट रिकमेंडेड। सो कंसल्ट डॉक्टर ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे इस मामले में मैं खुद होम्योपैथ हूँ, तो मैं खुद इस मामले में ऐसा भी सोचती हूँ कि या होम्योपैथी इज वेरी हेल्पफुल फॉर फीमेल्स। जैसे जब हम पीरियड्स का प्रॉब्लम लेते हैं तो बहुत सारे लड़कियों को, यंग लड़कियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनको पेन होता है, या फिर ऐसे कई लड़कियों को सीवियर ब्लीडिंग होती है, या फिर और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो और इसके साथ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि फाइब्रॉइड रहता है फीमेल्स के बॉडी में, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ऐसे कई सारे डिसीजेस है जिसको होम्योपैथी से भी अच्छा रिजल्ट है। तो homeopathy can also help in this way. Definitely, if you know any homeopath or if you would like to मतलब visit, so homeopathy is also good choice. आयुर्वेद और एलोपैथिक तो है ही, और हर एक पैथी का अपना इम्पोर्टेंस रहता है। हर एक पैथी के अपनी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस रहते हैं। अगर हमें कुछ सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर अगर हमें कुछ सर्जरी ही रिकमेंड किया है, तो डेफिनेटली वी कांट से दैट होम्योपैथी और आयुर्वेद विल हेल्प। देन यू नीड टू गो टू एलोपैथिक डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम और हर, और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इन दिस वे अफर्मेशंस, जैसे आजकल हम बहुत सारे जगह पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे अफर्मेशंस घूमते रहते हैं, सारे लोग ज्ञानी बन जाते हैं और अफर्मेशंस देने स्टार्ट करते हैं डिफरेंट। बट अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो अफर्मेशंस कोई फॉलो नहीं करता है। व्हाट इज अफर्मेशंस? तो ये रहता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक इन प्रेजेंट टेंस। मतलब जब हम खुद के प्रति कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं अपने लिए, तो ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा काम करती है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति, इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक फीमेल के लिए ही है, कोई भी व्यक्ति खुद को उसने सेल्फ डिजर्व रखना चाहिए। जैसे मैं
आई ट्रस्ट माई इनर बॉडी और आई लव माई सेल्फ, ये जो चीजें रहती है, जो खुद को प्यार करना, ये बहुत जरूरी है। जब हम खुद को सेल्फ वर्थ मानते हैं तब अपनी बॉडी और अपना हेल्थ अपने आप हार्मोनी में रहते हैं, सारे हार्मोन्स सही टाइम पे सीक्रेट होते हैं और पूरी बॉडी का सिस्टम फिर उसी पे अच्छा काम करती है। मतलब ये इस तरह से है कि अगर हम पानी में सॉल्ट मिला दे तो बाद में अगर हमने बोला कि वो सॉल्ट आप ढूंढ सकते हैं क्या, तो आप नहीं ढूंढ सकते कि मतलब अगर हम देख उसमें दिखता है क्या, तो वो दिखता नहीं है सॉल्ट। तो उसी तरह से अफर्मेशंस का रोल है। अगर हम अफर्मेशंस का क्या काम है, अगर हम ऐसा देखना चाहेंगे अपने लाइफ में, तो शायद हमें उसमें कुछ ना मिले, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करता है और बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है कि जो भी अपनी हेल्थ है उसको रिगेन करने के लिए, जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी, बेसिकली हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे डिटोरिएट कभी नहीं होती है, उसके पहले मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं। उसको ठीक रखने के लिए आपको खुद को पहले ठीक रखना जरूरी है। मतलब हमारा जो दूसरों के साथ रिलेशन रहता है, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने कलीग के साथ, जिसके भी साथ रिलेशन आपका है, वो तभी अच्छा रह सकता है जब आपका खुद के साथ रिलेशन अच्छा रहे। तो उसके ऊपर बाद में आपके बाकी के रिलेशंस मैटर करते हैं। सो अफर्मेशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज लाइफ, टूडेज डे टू डे बिजी लाइफ, बिकॉज एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल। और हर जगह अगर हम देखते हैं तो सब लोग मतलब हर कोई अपना अच्छा देखता है, दूसरे का अच्छा नहीं देखता है। सो इट डजंट हेल्प एज अ सोसाइटी। अगर हम देखते हैं तो ये बात हेल्प नहीं करती है, लेकिन उसके लिए भी सोसाइटी में अपना खुद का एक क्रेडिट देने के लिए भी अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। सो अपनी बेटर हेल्थ के लिए, एक वुमन के लिए भी उसको खुद के बेटर हेल्थ के लिए अफर्मेशंस काम करते हैं। जैसे कुछ अफर्मेशंस है, आई ट्रस्ट माई इनर विजडम, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को अप्रूव करती हूँ, मतलब मैं खुद सपोज मोटी हूँ या फिर पतली हूँ या फिर मेरी हाइट ज्यादा है कम है, जो भी है, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई I am free and I am prosperous and flexible, like these kind of affirmations. इसके बाद आता है योग या योगा और प्राणायाम, जो हमारा एंशियंट इंडियन कल्चर में अगर हम देखते हैं तो हमारे इसमें योगा और प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हेल्थ रीगेन करने के लिए या फिर हेल्थ अच्छी रखने के लिए जो योग रहता है वो बहुत फायदेमंद रहता है। जो रेगुलर योगा करते हैं या फिर प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो अल्टीमेटली इट गिव्स अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ बाय मेंटल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल। और इस वुमेन्स के लिए जो आज वो मल्टीटास्किंग करती है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम करती है एक महिला, तो उसके लिए उसको खुद को काम एंड एवरी मतलब बैलेंस रखने के लिए अगर वो योग और प्राणायाम रेगुलरली प्रैक्टिस करती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प हर। मेडिटेशन इज आल्सो वन वे, जिससे अगर हम देखते हैं तो मेडिटेशन एक बहुत छोटा टाइम के लिए किया जाता है, 5 या 10 मिनट के लिए, जो हम खुद को थोड़ी देर के लिए शांत रखते हैं। तो उस टाइम में हमारी जो एनर्जी होती है वो रीगेन होती है और फिर वो हमें और पावर देती है आगे चीजों को लेने के लिए, या फिर जो भी हमारे सामने स्ट्रेस रहते हैं, चीजें रहते हैं, उसको ये करने के लिए, मतलब उसको झेलने के लिए। सो मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम आर लाइक टुगेदर, दे आर लाइक काफी सारे समय अगर हम देखते हैं तो जो योग प्रैक्टिस करता है, प्राणायाम प्रैक्टिस करता है, वो मेडिटेशन भी करता है, या फिर ये एक दूसरे के साथ जाने वाली चीजें हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस से हमें हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को, मतलब कोई भी डिसीज होने के पहले प्रिवेंशन के लिए ये सारी अच्छी है। जैसे अफर्मेशन है, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। और अगर हम जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज या फिर कोई भी है जो जिसको हेल्दी फिट एंड फाइन रहना है, ऐसे कोई भी लोग अगर हम देखते हैं कि वो अगर स्पोर्ट्स में है या फिर ऐसे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, कोई भी इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी में, अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, कोई लड़कियां अलग अलग स्पोर्ट्स खेलती है, या फिर कोई ऐसी भी औरतें रहती है जो जॉब करते हुए भी वो कुछ अपना एक शौक रखती है, कुछ वीकेंड्स पे कुछ प्लान करती है, जैसे ट्रेकिंग हो गया, या फिर कोई इंडोर गेम्स भी खेल सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आउटडोर गेम्स ही, लेकिन हाँ कुछ हॉबीज रखते हैं जो उनकी फिजिकल हेल्थ को भी एक अच्छा रखने के लिए मोटिवेशन देता है और एक मेंटल हेल्थ के लिए भी वो एक अच्छा काम करता है।
So sports also plays very important role for health. And if from my perspective, these are some points कि जैसे मैंने बोला कि एक डाइट के साथ आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ये सारी जो चीजें हैं ये अपने को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक मतलब हम जब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाइजीन से रिलेटेड है कि जब महिलाएं बाहर जब कहीं पे जाती है, आप ऑफिस में जाते हो या फिर कभी कभी पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है, तो इन दैट केस वो जो जब आप टॉयलेट यूज करते तो इट्स नॉट एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्लीन हो या फिर उसका सरफेस दिख भी रहा हो तो भी वो क्लियर हो। तो मेक श्योर कि आपका उससे कांटेक्ट कम से कम आए, या फिर वाटर का या जो भी नैपकिन्स रहते हैं, वाइप्स रहते हैं, उसका यूज करके ही बाद में उसको यूज किया जाए, अच्छे से साफ किया जाए उसको पहले। एंड उसके बाद भी आप आपके हाथ भी अच्छे से धो ले और आपके इनर पार्ट्स भी क्लीन करके उसको ये करें, तो फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन रहता है या फिर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स गायनिक या फिर वुमन को फेस करनी पड़ती है वो कम से कम उनको फेस करनी पड़ेगी। दीज आर सम पॉइंट्स कि जो जिससे वो एक अपने आप को हेल्दी रखने के तरीके मैं बोल सकती हूँ। So I think next slide I have done from my side, and thank you. These are some points कि जो मुझे लगे कि important है, and I tried my best, and thank you very much. Yeah, thank you so much, Neeta ma'am. Thank you very much for giving your valuable time for us. So students, if anyone want to ask any question, you can put question in the chat box. Parents, अगर आपको भी कोई question पूछना है मैम से, you can ask. Yes, am I audible ना? Okay. Yes ma'am, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ask me question. I will try to answer it. Related with health, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क. And teachers also, if you want, you can ask any question. Yes, Mayank is saying thank you so much, ma'am, for your valuable time provided to us by sharing wonderful knowledge for girls. Thank you, ma'am, from Mayank's side. Yeah, thank you. Yes, very well explained, ma'am. Knowledge shared was really, really helpful. Thanks, ma'am, from UT, Nandu. I hope it was clear and Yes, no questions? easy to understand. Yeah. Okay. So good afternoon, everyone. Myself, Mrs. Mahik Motwani. So on behalf of Shri Dombewali Mitra Mandal, Matoshri Kashiben Motilal Patel Senior College of Commerce and Science, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have contributed to this webinar on health and hygiene organized by our Women Development Cell and Health Club. At the outset, I thank our resource person, Dr. Neeta Sali ma'am. We are really enlightened with your knowledge and presence. I would like to thank our Vice Principal and Chairperson of WDC Cell, Mrs. Madhuri Nandanwar ma'am, our HOD, Mr. Rupesh Patil sir, Mrs. Kalpana Jadhav ma'am, and Mrs. Rohini Patil ma'am for their support to make this event successful. A special thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staff for their continuous support and coordination. Our heartfelt thanks to our students and parents for active participation throughout the session. With these warm words and kind message, we move to end of today's program. So once again, thank you all. Yeah, thank you, ma'am. Thank you.